السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد. معزز طلباء و طالبات، سب سے پہلے میں رمضان کی آمد بلکہ رمضان میں داخل ہونے پر مبارکباد دیتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ یہ رمضان کا مہینہ ہمارے لیے یقیناً مبارک ثابت ہوگا اور اس کی رحمتیں، برکتیں اور سعادتیں ہم سب کے نصیب میں آئیں گی۔ اور اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں رمضان کی قدر کرنے اور پھر اس میں کما حق و عبادتیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان کو قبول فرمائے۔ ہمارے سلف میں سے کسی کے بارے میں آتا ہے کہ وہ کہا کرتے تھے کہ جو لوگ مر چکے ہیں، اگر ان سے کوئی خواہش کرنے کے لیے کہا جائے گا تو وہ یہی خواہش کریں گے کہ اللہ تبارک تعالیٰ انہیں دنیا میں بھیجے اور رمضان کا ایک دن عطا کرے۔ رمضان کے ایک دن کی وہ خواہش کریں گے۔ تو رمضان کا ایک دن انسان کی عمر میں بہت زیادہ اہمیت رکھتا ہے، اور ہم جو کئی احادیث اس سلسلے میں جانتے ہیں اور قرآن میں اس کے بارے میں جو باتیں بتائی گئی ہیں ان کو جانتے ہیں، تو ہم کو یہ بات واضح طور پر سمجھ میں آ جاتی ہے کہ رمضان کس لیے اتنا زیادہ اہم ہے۔ تو بہرحال عام طور پر ایسا ہوتا ہے کہ رمضان کے علاوہ جو دوسرے دن ہے اس میں ہم اتنا اہتمام نہیں کر پاتے۔ صرف نیکیوں ہی کا اہتمام کی نہیں، نیکیوں ہی کا اہتمام نہیں بلکہ گناہوں سے بچنے کا بھی اتنا اہتمام نہیں کر پاتے۔ تو ہماری جو اعمال ہیں بری طرح متاثر ہوتے ہیں، اور قیامت کے دن انسان کے جو نیکیاں ہوں گی وہ ترازو کے ایک پلڑے میں ہوں گی، اور جو برائیاں ہوں گی وہ ترازو کے دوسرے پلڑے میں ہوں گی۔ اور انصاف اس حد تک ہوگا کہ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ وہ ایک کھجور میں پتہ نہیں کتنے ذرے ہوتے ہوں گے، یعنی انسان کو کوئی کسی بھی نیکی کو حقیر نہیں سمجھنا چاہیے، کیونکہ اللہ تبارک تعالیٰ اگر ذرہ برابر نیکی ہوگی تو بھی اللہ تبارک تعالیٰ باقاعدہ اسے شمار کرے گا۔ اور یہی معاملہ گناہوں کا ہے، یہی معاملہ گناہوں کا ہے۔ تو دوسرے مہینوں میں معلوم نہیں ہمارے کتنے گناہ ہو گئے تھے واجبات میں کوتاہی کرنے کی وجہ سے، یا پھر بہت سی ایسی چیزیں جو درست نہیں ہوتی ان کے ارتکاب کی وجہ سے۔ تو وہ تمام چیزیں ایسی تھیں جو ہمارے برائی کے پلڑے کو بھاری کرتی رہیں۔ اب موقع ہے ہمارے سامنے کہ ہم اپنے نیکیوں کے پلڑے کو بھاری کریں۔ تو اب اپنی ہمت کی بنیاد پر ہے، اور ہمیں چاہیے کہ اولو العزم کا مظاہرہ کریں۔ حقیقت یہ ہے کہ ہماری فرصت کے اعتبار سے عبادت نہیں ہوتی، ہماری فرصت کے اعتبار سے عبادت نہیں ہوتی، بلکہ عبادت اپنے آپ کو عبادت میں مصروف کرنے کے اعتبار سے ہوتی ہے۔ وہ ہمارے مصروفیت کا ایک حصہ ہوتا ہے، لیکن ہم اسے اپنی فرصت کا ایک موقع بنا دیتے ہیں۔ تو جب فرصت نہیں ملتی تو وہ موقع نہیں ملتا۔ لیکن جو اللہ تعالیٰ کی قدر کو جانتے ہیں، اللہ تبارک تعالیٰ کی عظمت کو پہچانتے ہیں، وہ اسے اپنی ایک مصروفیت بناتے ہیں اور اپنے دوسرے کاموں کو اپنی فرصت کا موقع بناتے ہیں۔ تو اسی وقت انسان کر سکتا ہے، انسان عبادت کرے، اسے تکلیف کا احساس ہو، بھوک و پیاس کی شدت کو محسوس کرے، اور طویل قیام کی وجہ سے اس کے پیروں میں جو تکلیف ہوتی ہے اس کو محسوس کرے، اور طویل طور پر قرآن پڑھنے بیٹھ جائے، محسوس کرے کہ بہت دیر سے میں بیٹھا ہوں۔ یہ بہت بڑی چیز ہے۔ اس طرح عبادت انسان کو کرنی چاہیے کہ باقاعدہ وہ ان چیزوں کو محسوس کرے۔ تو یہی سلف کا دستور تھا۔ سلف میں سے کئی اسلاف کے بارے میں
जैसा कि बयान किया जाता है कि वो आम दिनों में कुरान करीम को 7 दिनों में ख़त्म करते थे। आम आम दिनों में रमज़ान के अलावा। तो जब रमज़ान आता तो हर 3 दिन में ख़त्म करते, और जब आखिरी अशरा आता तो हर एक दिन में ख़त्म करते। बाकी उस्मान इब्न अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बारे में आता है कि वो हर दिन एक कुरान ख़त्म करते, और इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह के बारे में आता है कि वो हर दिन 2 कुरान ख़त्म करते थे। और फिर हम अगर सोच कर देखें या तजुर्बा करें तो ये चीज़ मुश्किल भी नहीं है, क्योंकि आदमी के लिए खाने की जो मसरूफियात हैं वो नहीं होती रमज़ान में, जिसमें बहुत सा वक्त चला जाता है। और फिर जब इंसान खाता पीता नहीं तो फिर ज़रूरत भी उसे पेश नहीं आती, तो एक तवील वक्त तक वो बैठ जाता है एक साथ, और उसके लिए वो चीज़ मुमकिन हो जाती है जो आम दिनों में मुमकिन नहीं होती, या फिर रोजे होने की वजह से उसके लिए वो चीज़ मुमकिन हो जाती है जो रोजा अ, नहीं होने की सूरत में वो चीज़ उसके लिए मुमकिन नहीं होती। जहाँ तक 3 दिन से कम में कुरान को ख़त्म न करने के बारे में अहादीस आई हैं कि 3 दिन से कम कुरान ख़त्म करने में कोई खैर नहीं है, तो उसके बारे में जैसे कि अहले इल्म बताते हैं कि उसका ताल्लुक आम हालात से है, यानी आम हालतों में, आम दिनों में और आम मकामात में इंसान को जो है 3 दिन से कम में कुरान को ख़त्म नहीं करना चाहिए। एक दिन में 10 पारे वो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि इंसान जो उसके हुकूक हैं, तजवीज़ वगैरह के जो कवायद हैं, या फिर उसके मानों के बारे में किसी हद तक गौर व फिक्र जो उसकी इस्तिताअत है उसके मुताबिक वो चीज़ हासिल होती है, लेकिन तेज पढ़ने से वो चीज़ हासिल नहीं होती। तो ये जो अहकाम है 3 दिन में कुरान को ख़त्म करने के ताल्लुक से, उसका ताल्लुक जो है आम दिनों से, आम मकामात से है। इसी का इंसान को आम हालात में यही करना चाहिए। लेकिन ऐसे खुसूसी ज़माने होते हैं, जैसे कि रमज़ान का महीना है, या फिर जिलहज्जा के 10 दिन है, शुरू के 10 दिन है, या फिर खुसूसी जो मकामात होते हैं, जैसा कि हरम है, मस्जिद नबवी है, तो इनमें इंसान ज्यादा हसनात हासिल करने के लिए 3 दिन से कम में कुरान को खत्म कर सकता है। इब्न रजब हम्बली रहमतुल्लाह अलैह इस बात की वजाहत करते हैं, और हमारे जो सलफ सालिहीन का जो अमल है उससे भी यही मालूम होता है। खास तौर पर उस्मान इब्न अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, जो खुलफाए राशिदीन में से हैं, उनका अमल भी यही जाहिर करता है कि ये 3 दिन का जो मामला है, ये आम हालात के लिए है, लेकिन खुसूसी जमानों में और खुसूसी मकामात में इसकी रुख्सत है कि इंसान 3 दिन से कम में कुरान को खत्म करे। ये अलग बात है कि उलमा का एक मौक़िफ़ ये भी है कि हदीस आम है, हदीस के अल्फाज आम है, उसमें रमज़ान और गैर रमज़ान की तखसीस नहीं है। इसलिए इसलिए 3 दिन से कम में कुरान को खत्म नहीं करना चाहिए। बहरहाल अगर 3 दिन भी अगर हम लोग सोचेंगे तो ये भी आजकल बहुत ही कम लोग होंगे जो उसे 3 दिन में खत्म करते होंगे। एक दिन में कुरान को खत्म करना तो बहरहाल एक सिर्फ रिवायतों की बात रह गई। हम उसके ना तो मुशाहिदा हमारे सामने है वैसा कोई, और ना ही तजुर्बा है। लेकिन 3 दिन भी ये बहुत बड़ी चीज है। ये बहुत बड़ी चीज है कि इंसान कुरान खत्म करे। कुरान को ज्यादा से ज्यादा पढ़ना रमजान में मतलूब है। ये और बात है कि कुरान को समझना भी मतलूब है, और असल मकसद कुरान का वही है, समझना, उस पर गौर करना, उस पर अमल करना, ये असल मकसूद है। लेकिन ये फजीलत के जो दिन है उसमें जो है कुरान को वो ख़त्म करे, बार बार ख़त्म करे, ये चीज़ भी मकसूद है। अगर इंसान ऐसा करे कि कुछ वक्त कुरान को समझने के लिए दे और कुछ वक्त कुरान की तिलावत के लिए रखे, तो वो ज़्यादा अच्छा है। यानी कोई चीज़ मुतासिर नहीं होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि इंसान सिर्फ कुरान के समझने में लग जाए और रमज़ान के महीने में तिलावत ना कर पाए, या फिर तिलावत में लग जाए, कुरान को समझ ना पाए। ऐसा ना हो, बल्कि वो एक बड़ा हिस्सा तिलावत के लिए दे रहा है तो कुछ हिस्सा उसका कुरान को समझने के लिए भी खास करना चाहिए। तो बहरहाल अल्लाह तबारक ताला हमें इसकी तौफीक अता फरमाए। फस्लुन फी तहरीमी फिल मिल्क वयजूज़ु अन यमलिक उख्तैनि वलहु वतु इहदाहुमा फमता वतिअहा हरुमत उख्तुहा हत्ता तहरुमल मौतूअतु बितज़वीजिन औ इखराजिन अन मुल्किही वयअलम अन्नहा गैरु हामिलिन फ़इज़ा वतिअ الثانية ثم عادت الأولى إلى ملكه لم تحل له حتى تحرم الأخرى وعمة الأمة وخالتها في هذا كأختها۔ यहाँ रुकेंगे इंशाल्लाह। इस इबारत को हल कर लेंगे इसके तर्जुमे और इसकी शरह के साथ।
अ, फसल का जो अनवा लिखा हुआ है, फसल फि तहरीमी फिल मिल्क। मिल्कियत में जो लौंडियां होती हैं, उनकी हुर्मत की शक्लों के बाब बयान में, उनकी हुर्मत यानी किस सूरत में उनकी हुर्मत होती है, उसके बयान से ताल्लुक रखती है ये फसल। मौलिक रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं वयजूजु अन यमलिका उख्तैनी, और उसके लिए जायज है कि वो दो बहनों का मालिक हो, यानी दो बहनों को अपनी लौंडी बनाए। वयजूजु अन यमलिका उख्तैनी, और जायज है उसके लिए, यानी एक किसी शख्स के लिए जायज है कि वो दो अ, बहनों का मालिक हो। वलहु वतु इहदाहुमा, और उससे किसी एक से ही ताल्लुक कायम करने की इजाजत होगी, और उसे किसी एक से ही ताल्लुक कायम करना जायज होगा। फमता वतिअहा, जब उससे वो ताल्लुक कायम करेगा, हरुमत उख्तुहा, तो उसकी बहन उस पर हराम हो जाएगी। हत्ता तहरुमल मौतूअतु, यहाँ तक कि फिर वो मौतूआ जिससे उसने ताल्लुक कायम कर लिया है, वो उस पर हराम हो जाए। बितजवीजिन, या तो उसका निकाह करते हुए, और इखराजिन अन मुल्किही, और इखराजिन अन मिल्किही, या अपनी मिल्कियत से उसको निकालते हुए। वयअलमा अन्नहा गैरु हामिलिन, और वो इस बात को जानता रहे, जानता हो कि वो हामिल नहीं है। फ़इज़ा वतिया सानियता, फिर जब वो दूसरी से ताल्लुक कायम करे, सुम्मा आदतिल ऊला इला मिल्किही, फिर पहली उसकी मिल्कियत में लौट आए, लम तहिल्ल लहू हत्ता तहरुमल उखरा, तो वो उसके लिए हलाल नहीं होगी यहाँ तक कि दूसरी उस पर हराम हो। वह अम्मतुल अमती व खालतुहा, और किसी लौंडी की फूफी और खाला, फी हाजा, इस मामले में, का उख्तिहा, उसकी बहन ही की तरह है। ये जो फसल है, आ, इससे पहले जो बाब गुजर चुका है उसी का तसलसल है। जो इससे पहले बाब गुजर चुका है उसके तसलसल में ये बताया गया था कि निकाह में दो बहनों को या फिर किसी औरत और उसकी फूफी या खाला को जमा करना हराम है। तो ये हुर्मत जिस तरह उनमें है, उसी तरह लौंडियों में भी ये हुर्मत बाकी है। उसी उसी जो ऊपर जो बाब गुजर चुका है उसी का तसलसल है, लेकिन यहाँ लौंडियों के बाब में है। लौंडियों के बाब में है, यानी जिस तरह किसी आजाद किसी आजाद लड़कियों में दो बहनों को जमा करना, या उसकी बहन या उसकी फूफी या खाला को जमा करना जायज नहीं होता, इसी तरह इसके लिए भी जायज नहीं होता। उस लौंडियों में भी ये चीज जायज नहीं होती। तो उसी उसी बारे में ये फसल है, और बहुत ही आसान है। कहते हैं यजूजु अन यमलिका उख्तैनी, जायज है कि वो दो बहनों का मालिक हो, क्योंकि लौंडियों को जो निज़ाम है, आप जानते हैं कि वो खरीदे और बेचे जाते हैं, और विरासत से भी किसी इंसान के हिस्से में आ सकते हैं। तो हो सकता है कि किसी के तहत दो लौंडियां ऐसी आए जो आपस में बहनें हों, खा वो उन्हें खरीदा हो या फिर ये विरासत के जरिए उसके पास मुंतकिल हुई हों। ये चीज जायज है कि उसकी मिल्कियत में दो बहनें हों। लेकिन वलहु वतु इहदाहुमा, दो बहनों को निकाह में जमा करने की जैसी, दो बहनों को एक साथ जमा करने की जैसे निकाह में हुर्मत है, और उसी तरह लौंडियों में भी दो बहनों के साथ एक साथ ताल्लुक कायम करने की भी हुर्मत पाई जाती है। लिहाजा दो बहनें उसकी मिल्कियत में तो हो सकती हैं, लेकिन ताल्लुक जो है वो किसी एक से ही कायम करेगा। ये उसके लिए जायज नहीं होगा कि वो दो बहनों के साथ एक साथ ताल्लुक कायम करे, या फिर किसी औरत और उसकी फूफी को जमा करे इस मामले में, या किसी औरत या खाला जो कि दोनों लौंडियां हैं उनको जमा करे। ये जायज नहीं है। वो किसी एक से ही ताल्लुक कायम कर सकता है। जो हुर्मत वन तजमउ बैन अल उख्तैनी,
जो आयत है और फिर जो हदीस है कि ला युजमउ बैनल मरअति व अम्मतिहा वला बैनल मरअति व खालतिहा, आयत में दो बहनों के जमा करने की ममानियत है, और हदीस में औरत और उसकी फूफी और फिर उसकी खाला, इनके दरमियान जमा करने की ममानियत है। तो ये जो ममानियत आज़ाद औरतों में पाई जाती है, उसी पर कयास किया गया है लौंडियों को, उसी पर कयास किया गया है लौंडियों को कि उनको भी जमा नहीं करना चाहिए। उलमा का एक तबका कहता है, उलमा का एक तबका इस बात का कायल है कि उनको जमा किया जा सकता है, इसलिए कि अल्लाह तबारक ताला ने औ मा मलकत ऐमानुकुम कहा, या औ मा मलकत ऐमानुहुम फ़इन्नहुम गैरु मलूमीन। इंसान जो ताल्लुक कायम कर सकता है वो या तो बीवी हो या फिर वो जिनका वो मालिक होता है, और ऐसी सूरत में वो मलामत उठाने वालों में से या जो मलामत के जो मुस्तहिक होते हैं उनमें से वो नहीं होता। इस आयत से इस्तेदलाल करते हुए बाज़ अहले इल्म कहते हैं कि ये शर्त लौंडियों में नहीं है, वो बहनों को जमा कर सकता है या किसी औरत या उसकी फूफी और उसकी खाला को जमा कर सकता है। लेकिन राजिह बात यह है कि वो अन तजमउ बैनल उख्तैनी, ये जो आयत है, और ला युजमउ बैनल मरअति व अम्मतिहा वला बैनल मरअति व खालतिहा, ये जो हदीस है ये उमूम है, इसमें उमूमियत पाई जाती है। और फिर उसकी जो इल्लत है कि इनके दरमियान तो सिला रहमी मतलूब है, ये रिश्तेदार हैं और रिश्ते में सिला रहमी मतलूब होती है, लेकिन अगर वो किसी एक शख्स के साथ जमा होंगी तो उनके अंदर जो है आपस में कराहत पैदा हो सकती है, दुश्मनी हो सकती है, कीना और जो है कीना और बग़्ज़ हो सकता है। तो जो इल्लत और जो कबाहत आज़ाद औरतों में बहनों के जमा करने में पाई जाती है, उसी तरह लौंडियों में भी बहनों की जमा करने में पाई जाती है। तो जिस इल्लत की वजह से वो हराम है, वो इल्लत जब यहाँ भी पाई जाती है तो जाहिर है कि उसकी वजह से ये भी हराम होना चाहिए। तो राजिह कौल वही है जिसकी तरफ मौलिफ गए हैं। मौलिफ रहमतुल्लाह अलैह ने जो कौल इख्तियार किया है, वही कौल राजिह है कि वो दो बहनों को अपनी मिल्कियत में जमा कर सकता है, लेकिन वो एक ही के साथ ताल्लुक कायम करेगा, दूसरे के साथ नहीं करेगा। फमता वती, जब वो उस लौंडी से ताल्लुक कायम करेगा, हरुमत अलैहि उख्तुहा, तो उसकी बहन उस पर हराम हो जाएगी। हत्ता तहरुमल मौतूअतु, यहाँ तक कि जिससे उसने ताल्लुक कायम किया है फिर वो उस पर हराम हो, दूसरे से वो ताल्लुक कायम नहीं कर सकता, दूसरी बहन से जो उसकी लौंडी है। यहाँ तक कि फिर वो जिससे ताल्लुक कायम किया है वो उस पर हराम हो जाए। कैसे अब उसके ऊपर हराम हो जाएगी? बितजवीजिन, या तो वो उसकी निकाह कर देगा, किसी गुलाम से उसने अपनी लौंडी का निकाह कर दिया तो जाहिर है कि अब ये इसके ऊपर हराम हो गई। औ इखराजिन अन मिल्किही, या फिर वो उसको अपनी मिल्कियत से खारिज करेगा। अपनी मिल्कियत से कैसे खारिज करेगा? उसे बेच देगा। वयालमु अन्नहा गैर हामिलिन, और फिर वो जानता हो कि वो हामिल नहीं है, क्योंकि जब तक वो हामिल रहेगी तब तक गोया वो इद्दत में है, और जब तक वो इद्दत में है तब तक वो उसकी बहन जो कि लौंडी है, दूसरी बहन उसकी जो लौंडी है, उससे ताल्लुक कायम नहीं कर सकता, क्योंकि जब तक वो हामिल है वो या इद्दत में है। जैसे कि हम लोग उसमें पढ़ चुके हैं बहनों के जमा करने में या बहन और फूफी को जमा करने में, कि अगर कोई शख्स किसी बहन को तलाक दे देगा तो जब तक वो इद्दत होगी तब तक वो उसकी बहन से निकाह नहीं कर सकेगा। तो अब यहाँ भी जब वो हामिल होगी तो जाहिर है कि नहीं कर सकेगा। तो अब यहाँ मौलिक रहमतुल्लाह अलैह ये कहते हैं कि दो शर्तें हैं। जो अ, उसकी दूसरी बहन जो उसकी मिल्कियत में है और जिससे वो ताल्लुक कायम नहीं कर सकता है, या फिर उसकी खाला जो उसकी मिल्कियत में है, या फिर उसकी फूफी जो उसकी मिल्कियत में है जिससे वो ताल्लुक कायम नहीं कर सकता, उनसे ताल्लुक कायम करने की दो शर्तें हैं। पहली शर्त यह है कि वो जिससे उसने ताल्लुक कायम किया है उसका निकाह कर दे, और जब उसका निकाह कर देगा तो जाहिर है कि फिर अब वो उस पर हराम हो गई। तो ऐसी सूरत में फिर उसकी बहन जो उसकी मिल्कियत में है उससे ताल्लुक कायम कर सकता है। दूसरी शर्त यह है कि, या फिर ये दूसरी शक्ल ये है कि वो उसको अपनी मिल्कियत से निकाल दे, उसको बेच दे। जब वो बेच देगा तो फिर उसके बाद वो उससे ताल्लुक कायम कर सकता है। लेकिन इसके साथ साथ ये भी जानना जरूरी है कि वो हमल से ना हो, क्योंकि अगर वो हमल से है तो उसके बाद गोया उस सूरत में वो
इद्दत में होगी। और इद्दत में फिर वो उसकी बहन, उसकी लौंडी में जो उसकी बहन है या फिर फूफी है या खाला है, उससे वो ताल्लुक कायम नहीं करेगा। ये एक मसला हो गया। अब एक और मसला है, ये ऐसे मसाइल है जो जिसका जिनका ताल्लुक क़ियास से है, पेश आ भी सकते हैं या पेश आए हुए होंगे। लेकिन आम तौर पर ये मसाइल पूरी तरह फर्जी भी नहीं है। ऐसे मसाइल तो पेश आएंगे, क्योंकि जाहिर है कि जब वो दौर था या फिर वो दौर आएगा तो फिर ये सब मसाइल पेश आएंगे। तो ऐसी सूरत में ये मसाइल ऐसे हैं जिनका इल्म होना जरूरी है। उसके बाद कहते हैं फ़ैज़ा वतिया सानियता, जब वो दूसरे से ताल्लुक कायम करे। क्योंकि पहला मसला ये था कि वो किसी एक से ही ताल्लुक कायम कर सकता है, और करेगा तो दूसरी उस पर हराम हो जाएगी। दूसरा मसला ये था कि दूसरी से फिर ताल्लुक उसी सूरत में कायम कर सकेगा जबकि वो उसको अपनी मिल्कियत से निकाल दे, उसे बेच दे, या फिर ये कि उसका निकाह कर दे। अब तीसरा मसला ये कि फिर वो जिसको अपनी मिल्कियत से निकाल दिया था या निकाह कर दिया था तो उसके ऊपर हराम हो गई थी, फिर वो अब दोबारा इसके पास आ जाती है, यानी वो उसके गुलाम ने उसे तलाक दे दी, या फिर उसकी वफात हो गई, या फिर ये कि इसने फिर उसे खरीद लिया, बेच दिया था फिर उसे खरीद लिया। तो अब उस सूरत में क्या होगा? तो कहते हैं फैज़ा वती अस्तानियता, जब वो दूसरी से ताल्लुक कायम करेगा, सुम्मा आदतिल ऊला इला मिल्किही, फिर वो पहली उसकी मिल्कियत में लौट कर आ जाए। अब वो पहली जो लौट कर आई है, या तो इसकी बहन हो या खाला हो या फूफी हो, हुक्म एक ही है। आप उसमें जो है उस जगह पर बहन को रखें या उसकी फूफी को रखें या उसकी खाला को रखें, एक ही हुक्म है। तो वो उसकी मिल्कियत में लौट कर आए, लम तहिल्ला लहू, तो वो उसके लिए हलाल नहीं हो सकती। हत्ता तहरुमल उखरा, यहाँ तक के दूसरी उस पर हराम हो जाए। अब हराम होने की कैफियत क्या है? दूसरी के हराम होने की कैफियत क्या है? वही कैफियत जो पहले गुजर चुकी। वलैसा लिल मुस्लिमी व इन कान आबदन निकाह निकाह अमतिन किताबियतिन काफिरतिन वला लिहुर्रिन निकाह अमतिन मुस्लिमतिन इल्ला अल्ला यजिद कौला हुर्रतिन वला समन अमतिन व यखाफुल अनाता वलहु निकाह अर्बईन इज़ा कान शर्तानी फीही काइमैनी। इस इबारत की तर्जुमानी है। पहले तो इस बाप का जो उन्वान है वो फसल फी मवानी निकाहिल इमाई, लौनियों के निकाह में मवाने का बाप। लौंडियों से निकाह में मवाने का बाप। लौंडियों से निकाह की जो इजाजत है तो वो मुतलक नहीं है, बल्कि उसमें कुछ मवाने भी हैं। वो मवाने क्या हैं, वो इस बाब में बताए गए हैं। वलैसा लिल मुस्लिमी व इनका ना अब्दन, मुसलमान के लिए जायज नहीं है अगरचे कि वो गुलाम हो। निकाह अमतिन, किसी लौंडी से निकाह करना। किताबी यतीन, जो कि किताबी हो। काफिरतिन, काफिर हो। किसी काफिर किताबी लौंडी से निकाह करना किसी मुसलमान आजाद और गुलाम के लिए जायज नहीं है। वला लिहुर्रिन निकाह अमतिन मुस्लिमतिन, और जायज नहीं है किसी आजाद के लिए किसी मुसलमान लौंडी से निकाह करना। इल्ला अल्ला यजिदा तौला हुर्रतिन, सिवाय इसके कि वो किसी आजाद औरत का महर ना पाता हो। वला समाना अमातिन, और किसी लौंडी की कीमत ना पाता हो, उसके पास इस्तिताअत ना हो किस चीज की, किसी आजाद औरत का महर देने की, या फिर किसी लौंडी की कीमत देने की। उसके पास लौंडी की कीमत भी नहीं है और आजाद औरत का महर भी नहीं है। उस सूरत में अ, उसके लिए वो जायज है, वरना जायज नहीं है। वला लिहुर्रिन निकाह अमतिन मुस्लिमतिन, और किसी आजाद के लिए जायज नहीं है किसी मुसलमान लौंडी से निकाह करना। इल्ला अल्लाह यजिद तौला हुर्रतिन, सिवाय इसके कि वो किसी आजाद औरत का महल ना पाता हो। वला समना अमतिन, या किसी लौंडी की जो कीमत है वो ना पाता हो। वह यखाफुल आनता, और वो जिना का खौफ खाता हो अपने नफ्स पर। आनत जिना के माने में, वो यखाफु अल आनता, और वो खौफ खाता हो जिना का अपने नफ्स पर। वलहु निकाह अरबईन, और उसके लिए जायज है 4 लौंडियों से निकाह करना। इज़ा कान शर्तानी फीह काइमैनी, जब दो शर्तें जब दो शर्तें उसमें कायम हो, जब दो शर्तें जो ऊपर जिक्र की गई हैं वो उसके अंदर पाई जाती हों। तो इन 2 शर्तों के साथ जो है, अगर वो शर्तें उसके अंदर मौजूद होंगी
तो उस सूरत में वो चार लौंडियों से निकाह कर सकता है, जैसा कि वो चार आजाद औरतों से भी निकाह कर सकता है। उसी पर क़ियास करते हुए लौंडियों से भी उसे निकाह की इजाजत है। इबारत बिल्कुल वाज़ेह है। इबारत में कोई ऐसी चीज नहीं है जो कि पेचीदा हो। वाज़ेह बात है, वलैसा लिल मुस्लिमी व इन काना अब्दन निकाह अमतिन काफिरतिन। किसी मुसलमान के लिए अगरचे कि वो गुलाम ही क्यों ना हो, काफिर किताबिया लौंडी से निकाह करना जायज नहीं है। निकाह जायज नहीं है, क्योंकि चाहे वो आजाद हो या गुलाम हो, किसी काफिर लौंडी से निकाह नहीं कर सकता। किताबिया से नहीं कर सकता तो बदरज औला जो बुत परस्त है उससे नहीं कर सकता। इसलिए कि अल्लाह तबारक ताला ने इनके बारे में कहा, मिन फतयातिकुमुल मुमिनात, मिन फतयातिकुमुल मुमिनात, तुम्हारी मोमिन लौंडियों में से। पहली बात तो ये है कि अल्लाह तबारक ताला ने जो जायज किया है, वो मुसलमान लौंडियों की इजाजत दी है निकाह के लिए, और जो काफिर लौंडी है उनसे निकाह की इजाजत नहीं दी। क्योंकि अल्फाज क्या है, मिन फतयातिकुमुल मुमिनाती, तुम्हारी मोमिन लौंडियों में से। तो इससे बात मालूम होती है कि किसी काफिर, चाहे वो किताबिया हो या फिर वसनिया हो। किताबिया आमतौर पर किताबी, उस वक्त किताबिया होती थी, इस हैसियत से है, चाहे वो किताबिया हो या वसनिया हो, इसलिए भी कि वसनिया का मामला वाज़ेह है, तो इसलिए उसके जिक्र की जरूरत नहीं पड़ती। किताबिया चूंकि जो किताबिया हैं यानी यहूदी या नसरानी हैं, यहूदी या नसरानी जो लौंडी हो, उनके उनका ये मामला है। जहां तक यहूदी या नसरानी आजाद औरत है, उससे मुसलमान मर्द निकाह कर सकता है। मुसलमान जो मर्द है वो यहूदी या नसरानी यानी किताबिया आजाद औरत से निकाह कर सकता है। यहाँ जो है लौंडी से निकाह का जिक्र आ रहा है, लौंडी से निकाह का जिक्र आ रहा है। तो इसलिए लौंडी से जो मुसलमान है वो आजाद किताबिया औरत से निकाह कर सकता है, ये एक दूसरा मसला है। यहाँ उस मसले का जिक्र नहीं है। यहाँ जो है, जो किताबिया लौंडी है उससे निकाह करने की बात है। तो आजाद मर्द भी किताबिया लौंडी से निकाह नहीं कर सकता, ये एक बात हो गई। और दूसरी बात यह है कि गुलाम मर्द जो है वो भी किसी किताबिया लौंडी से निकाह नहीं कर सकता। उसके बाद आजाद मर्द के लिए दूसरी जो बात बयान की गई वो ये कि वला लिहुर्रिन निकाहु अमतिन मुस्लिमतिन। इसी तरह जो आजाद मर्द है वो मुसलमान औरत से भी निकाह नहीं कर सकता, वो मुसलमान लौंडी से भी निकाह नहीं कर सकता, क्योंकि उसको चाहिए कि वो आजाद औरत से निकाह करे। उसको आजाद औरत से निकाह करना चाहिए। इसलिए क्यों वो जो है इससे निकाह नहीं कर सकता। किससे? जो लौंडी है, उससे निकाह नहीं कर सकता। इसलिए किसी आजाद मर्द के लिए किसी मुसलमान लौंडी से निकाह करना जायज नहीं है, इल्ला, मगर बाद हालात में इजाजत दी गई है। आम हालात में तो इजाजत नहीं है, लेकिन बाद हालात में इजाजत है, जबकि जरूरत उसका तकाजा करती है। अल्लाह तबारक ताला के जो दीन है उसकी यही खूबी है कि जहाँ तंगी होती है कि अब मामला मालूम होता है कि यहाँ तंग हो जाएगा, तो वहां फिर कहीं ना कहीं से गुंजाइश निकल आती है, वसअत निकल आती है। इल्ला अल्लाह यजीदा तौला हुर्रतिन, सिवाय इसके कि कोई और ऐसा शख्स है कि गरीब है, वो किसी आजाद औरत के महर का इंतजाम नहीं कर सकता। वला समना अमतिन, और कोई लौंडी खरीद नहीं सकता। तो ऐसे शख्स के लिए जिसके अंदर ये दो शर्तें पाई जाती हैं। पहली शर्त ये है कि उसके पास किसी आजाद औरत से निकाह करने का महर नहीं है। और दूसरी शर्त ये है, और ये पहली शर्त में ही दो बातें हैं, किसी आजाद औरत से निकाह करने का महर नहीं और फिर किसी लौंडी को खरीदने की कीमत नहीं। और दूसरी शर्त ये है कि वह यखाफुल आनाता, कि वो अपने आप पर जिना का खौफ महसूस कर रहा हो, अपने आप पर जिना का खौफ महसूस कर रहा हो।
क्यों? जवान है, और फिर जो है वैसे कुछ असबाब है जिसकी वजह से अगर वो निकाह नहीं करेगा, तो ऐसी सूरत में जो है वो जिना जैसे बदतरीन गुनाह का शिकार हो सकता है। तो वैसे शख्स के लिए जायज है। इन दोनों शर्तों का ऊपर जिक्र आ चुका है। सूरत निसा की आयत नंबर 15 में अल्लाह तबारक तआला ने जिक्र किया, वमन लम यस्तति मिनकुम तौलन अन यनकिहल मुहसनातिल मुमिनाति फमिम्मा मलकत अयमानुकुम मिन फतयातिकुमुल मुमिनात। जो तुम में से ताकत न रखता हो कि वो पाक दामन मोमिन औरतों से निकाह करे, तो वो तुम्हारे जो मोमिन लौंडियां हैं, तुम्हारी मोमिन लौंडियां हैं, जिनके तुम मालिक हो, उनसे वो निकाह कर सकते हैं। तो अल्लाह तबारक व तआला ने इस शर्त के साथ इसकी इजाजत दी है कि वो उनसे निकाह कर सकते हैं, बशर्ते कि उनके अंदर ये दो शर्तें पाई जाएं। वलहु निकाहु अरबाइन इज़ा कान शर्तानी फीही काइमैनी। और उसके लिए इजाजत है कि वो चार लौंडियों से निकाह करे, जब उसके पास दोनों शर्तें पाई जाएं। दो शर्तें जिसकी बुनियाद पर एक लौंडी से निकाह करना उसके लिए जायज है, वही दो शर्तें ऐसी हैं कि वो एक से जायद लौंडियों से भी निकाह कर सकता है, जब तक उसके पास वो दो शर्तें पाई जाएंगी। अगर वो दो शर्तें उसके पास खत्म होंगी, नहीं पाई जाएंगी, तो ऐसी सूरत में उसको उनसे निकाह करना जायज नहीं है। यहाँ मेरा ख्याल से टाइम हो गया, आप 3 बजे, तो थोड़ा सा आगे मैं पढ़ाना चाह रहा था, आइंदा हफ्ता पढ़ लेंगे इंशाल्लाह। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिक, अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंत, अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।